Good afternoon, everyone. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes. And today's writing is a very simple writing. It's just a one page. But there are few things which can be learned because it's just a very small letter. So when something like this comes in exam, obviously it would be like, oh, that's very easy. But there are certain elements about this letter that needs to be addressed. Especially we can learn lot of grammar from this particular letter. Otherwise it's simple. But again, grammar is an important aspect of OET and of any English exam like IELTS PT. But in this particular case, so always have a simple approach. Again, I always say, please listen to my videos and write side by side on a pen. Take a pencil, take a paper and write. Only the writing can change the things and can make you feel better. So always start from the last using the information in the case notes. Write a letter referred to Miss Marika Divan, West End Physiotherapy Center, Brisbane, on behalf of Mrs. Elizabeth. So basically, we have to write letter to Physiotherapy Center. So there is a woman over there, Miss Marika Divan. We have to write this letter to her, and she's in a physiotherapy center on the behalf of Mrs. Elizabeth Dawson, requesting a home visit to provide advice and assistance with improving her husband's mobility. So basically, she wants her husband's mobility to be better, to be improved. So that's why we have to write a letter to physiotherapist. That's very simple, or a physiotherapist or to a person working in physiotherapy center. Again, when we are saying pay a home visit, so this is, I have always said that whenever there is a visit letter, today's visit is the most important part. So today's visit is this one, because that is the purpose of the letter. So knee is healing well. So that means patient had some problem with the knee. So it is doing well now. Patient has been suggested to use a walker or walking stick to assist with the mobility. That's why that's why his wife wants his mobility to be increased, because there must be some problem with mobility as well. Bob said he had a walking stick, but it was useless. Wife says he had never learned to use it properly. वाइफ कहती है कि हस्बैंड ने कभी वॉकिंग स्टिक को यूज करना नहीं समझा है, सीखा है, और जो हस्बैंड है वो कह रहा है कि मुझे तो वॉकिंग स्टिक बिल्कुल यूजलेस लगती है, और हम कह रहे हैं कि आपको वॉकिंग स्टिक यूज करनी चाहिए so as to assist your mobility. But he says no. Wife says he has never learned. She asked, तो वाइफ कह रही है कि ये जान के यूज नहीं कर रहा है, इसको आती नहीं है, और हस्बैंड कह रहे हैं नहीं नहीं मुझे आता है, बट ये स्टिक ही बेकार है, और हम कह रहे हैं देखो स्टिक तो यूज करनी पड़ेगी. सो दैट इज द काइंड ऑफ अ टॉपिक वेयर वी आर एंगेज्ड विद पीपल. आपको पता है ऐसी बातें कब होती है? आई एम सॉरी टू से, आई एम नॉट सेइंग इट नेगेटिवली और पॉजिटिवली, बट व्हेन अ पर्सन इज ओल्ड, तो ये कॉमन बातें हैं. एक जना कहते हैं हाँ, एक जना कहते हैं ना, तो ऐसे कंफ्यूजन्स क्रिएट होती हैं. शी आस्क्ड इफ आई वुड कॉन्टेक्ट देयर, आई का मतलब यहाँ पे हम, नर्स. शी आस्क्ड यानी वाइफ कह रही है कि आप कॉन्टेक्ट कर दो लोकल फिजियोथेरेपिस्ट को कि वो एक होम विजिट पे करें टू प्रोवाइड फर्दर असिस्टेंस टू इम्प्रूव हिज मोबिलिटी. तो सेम बात कि मेरे हस्बैंड की मोबिलिटी के लिए. अब मुझे सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ लिखने के लिए जानना है कि मोबिलिटी को हुआ क्या था. तो एक तो पेशेंट को सीवीए हुआ था 4 साल पहले, तो ये पहले से ही लिम्प के साथ चलता था, मतलब थोड़ा टेढ़ा होके चलते थे, और बैलेंस पहले से इम्पेयर था. लेकिन 18th को ये गिर गए थे, आज है 23, यानी 5 days पहले वो गिर गए थे, और बैडली ग्रेज लेफ्ट नहीं हो गई है. और जीपी हैज रिक्वेस्टेड डेली विजिट्स बाय ब्लू नर्सिंग होम केयर टू ड्रेस द वुंड. तो ब्लू नर्सिंग होम केयर कौन है? यू आर सोनिया मैथ्यूज, अ क्वालिफाइड नर्सिंग सिस्टर वर्किंग विद ब्लू नर्सिंग होम. तो हम ही है बेसिकली. जीपी ने हमें कहा था, ब्लू नर्सिंग होम केयर एजेंसी को कहा था. तो हम पेशेंट के घर एक तो वुंड को ड्रेस यानी पट्टी करने के लिए जाते हैं, और दूसरा हम पेशेंट को शावरिंग के लिए असिस्ट करने के लिए जाते हैं. तो जब हम सेकेंड डे गए, एक दिन छोड़ के, जब 18th के बाद 19th को गए जिस दिन वो गिरा, तो कोई इन्फेक्शन नहीं थी और पेशेंट धीरे धीरे चल पा रहा था. तो उसको थोड़ा बहुत दर्द थे, यूजुअल एक्स एंड पेन्स थे, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं थी. तो टुडे की विजिट में यही हुआ कि नी तो हील हो गई है, तो हमारा काम पूरा हो गया है. लेकिन पेशेंट वॉकिंग स्टिक के लिए हमने कहा भाई आपको यूज करना चाहिए, बट वो यूज नहीं कर रहा. तो वाइफ कह रही है कि फिजियोथेरेपिस्ट को भेज दो
जो इसकी कंडीशन को असेस कर सके और इनकी मोबिलिटी को इम्प्रूव कर सके। तो बड़ा ही सिंपल लेटर है। अगेन फर्स्ट लेटर आई ऑलवेज फर्स्ट पॉइंट आई ऑलवेज बोथ रिसीव एज पेंशन और दोनों ही एज्ड हैं और सीवीए हुआ था 4 years अगो। मेंटली अलर्ट है लेकिन स्लाइट स्पीच इंपेयरमेंट है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। मेन टॉपिक ये चल रहा है रेजिडुअल वीकनेस ऑन द लेफ्ट साइड, वॉक्स विद लिम्ब, बैलेंस स्लाइटली इंपेयर्ड। तो ये पेशेंट की कंडीशन को बताता है। तो अगेन जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, और टुडेज विजिट जैसे मैं कहता हूँ ये दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। तो अगर मैं फर्स्ट पैराग्राफ आपको लिख के दिखाऊं तो अगेन ट्राई टू मेक द फर्स्ट पैराग्राफ द सिंपलेस्ट वन। ओनली पर्पस दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग मिस्टर एक्स, जो भी नाम था सेकंड नेम, तो मिस्टर डॉसन हु फेल फ्रॉम स्टेयर्स and grazed his knee badly। उसकी नी पे ज्यादा ही होगी थी। Hence GP advised us, requested को advised word better रहता है, advised us to pay a home visit, to pay या फिर requested us to assist the patient with dressing and showering। आपने इकट्ठा कर दिया कि जीपी ने हमें कहा कि शावरिंग और ड्रेसिंग में पेशेंट को असिस्ट कर दो। नाउ ही इज बेटर। फिजियोथेरेपिस्ट को मेन बात बतानी है, एंड ही कैन वॉक विद असिस्टेंस ऑफ हिज वाइफ, एंड ऑल्सो ही हैज बीन सजेस्टेड टू यूज अ वॉकिंग स्टिक। अब जैसे ये लाइन लिखते हैं ना ये ज्यादा हो जाता है, तो प्लीज अवॉइड दिस लाइन। हाउएवर उसकी वाइफ असिस्टेंस ऑफ वाइफ से चल पाता है। हाउएवर या आप ऐसा लिख सकते हो, नहीं तो यहाँ पे भी कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। ही इज बेटर हाउएवर ही नीड्स। अगर सबसे सिंपल लिखना चाहते हो तो ये होता है कम से कम कि ओवरऑल वो गिर गया था। नाउ ही इज बेटर हाउएवर ही नीड्स फिजियोथेरेपी ब्रिंग फर्दर इंप्रूवमेंट इन हिज मोबिलिटी। ऐसे सिंपल लिखते हैं। जैसे मैंने पहले वाइफ की बात लिखी, कॉम्प्लेक्स हो रहा था, फिर मैंने दूसरी बात लिखने की कोशिश की तब भी कॉम्प्लेक्स हो रहा था। सो ट्राई टू मेक इट सिंपल। नाउ ही इज बेटर हाउएवर नीड्स फिजियोथेरेपी टू ब्रिंग फर्दर इंप्रूवमेंट in his mobility, hence he is being referred under your services। so that is how simple first paragraph should be। बिल्कुल टू द पॉइंट। स्टेयर से गिर गया, जीपी ने एडवाइस किया कि हम पेशेंट को शावरिंग एंड ड्रेस करें, नाउ ही इज बेटर, लेकिन उसको फिजियोथेरेपी चाहिए। तो वाइफ की बातें बाद में कर लेंगे, इसलिए हम आपकी सर्विसेज में अंडर में अब आराम से चलेगा। मिस्टर डॉसन हैड सीवीए, ऐसे सिंपल लाइन होती है 4 years अगो एंड सिंस देन। तभी मैं कहता हूँ सिंस देन का यूज आना चाहिए। ही हैज बीन हैविंग स्लाइट इम्पेयरमेंट इन वॉकिंग। बट अगेन ऐसे आप इंग्लिश को यूज कर सकते हो, ही हैज बीन हैविंग यू नो काइंड ऑफ इम्बैलेंस, जो भी उसका वो बैलेंस है, इम्पेयर्ड बैलेंस, तब से उसका इम्पेयर्ड बैलेंस चल रहा है। ऑल्सो जो भी है, he has slight impaired slight speech वाला point, या he has residual weakness on the left side। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ऐसे आराम से अगेन प्लीज जो आपका मन करता है, लेकिन लाइंस अच्छी बननी चाहिए। तो क्या था, स्लाइट स्पीच इंपेयरमेंट इंपॉर्टेंट, रेजिडुअल वीकनेस इन द लाइफ साइड एंड वॉक्स विद लिम्ब। तो इस लाइन को हम ऐसे लिख सकते हैं, वही जो हम लिख रहे हैं उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ बस।
ठीक है, तो यहाँ पे हम ये वाली लाइंस, कौन सी लाइंस बना रहे हैं, हाँ यहाँ पे सॉरी, हम ये वाली लाइंस बना रहे हैं कि मिस्टर डॉसन सीवियस सिंस देन ही हैज बीन हैविंग इम्पेयर्ड बैलेंस, ये दे रखा है इम्पेयर्ड बैलेंस and weakness, and also he has residual weakness of the left side and walks with limp. देखो इतने में मेरा सारा कुछ कंप्लीट हो गया, इसके अलावा और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। सेकंड वर्ड वर्ब पैटर्न इंपॉर्टेंट नहीं है, एज पेंशन इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट्स इट। सो बस फिर नेक्स्ट पैराग्राफ ऑन 18th अप्रैल, बिल्कुल सिंपल अगेन, 08/2008 he fell from stairs, he fell while वर्ड लगाना था बस आपको, while descending stairs, बिल्कुल ऐसे सिंपल। एंड badly grazed his knee, कोई ग्रामर चेंज नहीं जब तक जरूरत नहीं है, मतलब थोड़ा सा आपको वो करना चाहिए पैराफ्रेजिंग, बट जब सिंपल चल रहा था सिंपल से। सो जीपी advised us to dress the wound and to assist, यहाँ पे him वर्ड डाल दो, him with shoveling। अब जब नेक्स्ट विजिट आ रही है द फॉलोइंग डे, हमेशा बेस्ट है कि नेक्स्ट विजिट को हमेशा लिखो, क्योंकि 18th के बाद नेक्स्ट 19th आ रहा है यानी अगला दिन, तो अगले दिन की इंग्लिश हमेशा द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे हिज ग्रेज्ड नी। बस एक पैसिव बनाना होता है, देखो पैसिव क्या होता है, वॉज वर थर्ड फॉर्म, हमारे द्वारा की गई, तो वॉज लगाना था बस आपको, बाकी सेम, हिज लेफ्ट एंड देयर वाज नो साइन ऑफ इन्फेक्शन। देखिए कितना आराम से, एंड देयर वाज लगाना था, नो साइन ऑफ इन्फेक्शन। आप प्लीज जिनको भी ग्रामर में दिक्कत आ रही है इसको देख के लिख के देखो, आपको पता लगेगा आप कुछ ऐड ऑन ही नहीं कर रहे। देखो मैंने क्या डाला, ग्रेज ने यहाँ पे सिर्फ वॉज लगाया, फिर लिखा एंड देयर वाज नो साइन ऑफ इन्फेक्शन। अलोंग विद दैट, इसके साथ साथ ही वाज मैनेजिंग, अब ये अलोंग विद दैट के साथ अच्छा ही नहीं लग रहा तो इसको रहने दो, सिंपल लिखो ही वाज मैनेजिंग वेल टू गेट अराउंड। तो बेसिकली साइन ऑफ इन्फेक्शन नहीं था, तो यहाँ पे पॉजिटिव बात ये लिख सकते हैं, ऑल्सो ही वाज मैनेजिंग वेल। अलोंग विद दैट भी आ सकता है, पहले मुझे लग रहा था ये दोनों रिलेट नहीं हो रहे, पर ये रिलेट हो रहे हैं, क्योंकि हमने पॉजिटिव बात की थी कि उसकी जो नी है, क्योंकि हमने एक पॉजिटिव बात की है कि उसकी नी में इन्फेक्शन नहीं था, देयर वाज नो साइन ऑफ इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शन नहीं था, इसके साथ ही जा रहा है अलोंग विद दैट, वो चल भी पा रहा था, तो ये लाइन चल रही है वो चल भी पा रहा था। गेट अराउंड द हाउस with the aid of his wife, with the help of his wife, ये छोटा सा वर्ड चेंज कर दो, पैराफ्रेजिंग कर दो। फर्दर इसके अलावा, फर्दर इसके आगे, ही रिपोर्टेड, पास्ट में लिखना होता है हमेशा, इसको पास्ट में करो, जब पास्ट विजिट चल रही है तो पास्ट आएगा, रिपोर्ट्स नहीं, ही रिपोर्टेड दैट अपार्ट फ्रॉम यूजुअल एक्स एंड पेन्स ही वाज डूइंग वेल, तो इसको वॉज करना पड़ेगा क्योंकि पास्ट विजिट चल रही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी के लिए मैं सारे लेटर लिख रहा हूँ, नहीं तो इस लेटर में कोई लिखने वाली बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। अपार्ट फ्रॉम दैट ही वाज डूइंग वेरी वेल, देखो कितना आसान चल रहा है। अब आ गई है लास्ट विजिट, देखते हैं लास्ट विजिट को लिख के। सो पूरा लेटर एक स्टोरी की तरह चलता है, देखो स्टोरी ऐसे चल रही है कि लेटर इज बीइंग रिटन डॉसन जो गिर गया, नीड वो होगी, जीपी ने एडवाइस किया कि हम उसके घर जाएं, अब वो बेटर है, इसलिए तभी मैंने फर्स्ट पैराग्राफ को कभी भी क्लमजी नहीं करते, कभी भी भारी नहीं करते, कि सिंपल रहे, फिजियोथेरेपी आपकी चाहिए, रेफर्ड अंडर योर सर्विसेज, फिर सिंपल सा ये लिखा, इम्पेयर्ड बैलेंस है, रेजिडुअल वीकनेस है, ये छोटा सा पॉइंट डाला, फिर उसके बाद लिखा कि 18th को ये हुआ, और इसी में ही दूसरी विजिट भी डाल दी, तो मेरे लगभग 3 पैराग्राफ्स बन गए, मेरे को 4 या 5 बनाने होते हैं, तो अब मैं लास्ट विजिट पे आ गया हूँ टुडे, तो टुडे पे देखते हैं क्या लिखेंगे। सो टुडे इट हैज बीन फाउंड, ये जरूर लिखो, इससे अच्छा लगता है, ये पाया गया है, टुडे इट हैज बीन फाउंड दैट हिज नी इज हीलिंग वेल, तो हमने बता दिया कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है।
doing well and he has been advised, तो हमने उसको एडवाइस किया है to use walker और walking stick. हमने इसको कहा है walking stick या walker यूज करो. हमने उसको कहा कि walking stick यूज करो, तो बॉब ने बताया so walking stick. so हमने कहा कि आप यूज करो walking stick को, तो उसने रिप्लाई किया. so basically he replied that he had a walking stick. उसके पास होती थी but it was useless. कि पहले होती थी पर अब किसी काम की नहीं होती वॉकिंग स्टिक, मेरे लिए बेकार है. वेयर एज, ये वेयर एज लगा सकता है. वेयर एज का मतलब हाउएवर, कि जबकि, मतलब वो ये कह रहा है कि वो यूजलेस है. जद की मतलब अगर पंजाबी में बोलूं तो जद की, और हिंदी में बोलूं तो जबकि. जबकि उसकी वाइफ कुछ और कह रही है, तो ये वेयर एज हिज वाइफ सेज, उसकी वाइफ ये कह रही है he has never learned to use it. कभी नहीं सीखा. ठीक है, तो वाइफ ये कह रही है. इसके साथ साथ बिसाइड्स शी हैज ऑल्सो रिक्वायर्ड. पर ये बिसाइड वर्ड आपकी हेल्प कर देगा. जिसके लिए आप तंग हो रहे हो वो बिसाइड्स वर्ड है. इसके अलावा, किसके अलावा उसने कहा है शी हैज आस्क्ड अस या रिक्वेस्टेड अस. शी हैज रिक्वेस्टेड अस. बिल्कुल सिंपल लिखो, उसने हमसे रिक्वेस्ट किया है. शी इज रिक्वेस्टेड अस राइट to write a letter to you. ऐसा भी लिख सकते हैं, आपको लिख दें. so write a letter to you. yes, he has requested us to write a letter on her behalf. ऐसे लिख देते हैं. चलो, on her behalf to arrange a physiotherapist. उसने हमें कहा है, बिल्कुल अगेन सबसे सिंपल सोचो, टू अरेंज अ फिजियोथेरेपिस्ट. उसने कहा एक फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए. so she has requested us to write a letter on her behalf to arrange a physiotherapist for her husband mobility. बस. hence you are requested to pay a home visit. अलग लिख दो इसको प्लीज. सभी वर्ड्स को एक ही लाइन में मत लिखो. hence you are requested to pay a home visit to assist her husband in improving his mobility. अब देखो, मैंने आपके सामने ये लेटर लिखा है. हमें टोटल बात करते हुए हमें हुआ है टाइम 22 मिनट्स टोटल बात करते हुए. जबकि ये लेटर शायद 15 मिनट्स में. तो एक ओईटी का लेटर आप आराम से 15 मिनट्स में लिख सकते हो, आराम से. ये उसका प्रूफ है आपके सामने. 15 मिनट्स यू कैन राइट योर लेटर, अगर आप बिल्कुल आराम से और इजी सोचते हो. कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कहानी नहीं. और प्लीज जब तक आप लिखोगे नहीं, अभी सुनने में बड़ा आसान है, लेकिन जब तक आप इसको 2-3 बार देख के नहीं लिखोगे, क्या होगा अगर आप 3 बार लिखोगे. मेरी राइटिंग के साथ साथ देख के 10 मिनट्स, पहली बार 15 मिनट लग जाएंगे, दूसरी बार 10 मिनट लगेंगे, तीसरी बार 8 मिनट लगेंगे. तो लेस देन हाफ एन आवर में आप बहुत अच्छे से ओईटी राइटिंग सीख सकते हो अगर आप कोशिश करो तो. ये छोटी छोटी बातें कि 4 साल पहले होता तब से उसका इम्पेयर्ड बैलेंस है, ऐसी बातें सीखने के लिए ही हैज बीन हैविंग. जब आप पहली बार देखोगे तो आपको कहानी समझ आती है. जब दूसरी बार देखोगे आपको ग्रामर समझ आएगी. जब तीसरी बार देखोगे तो ग्रामर लिखनी समझ आएगी कि आपको लिखना कैसे है. जब तक आप इसको 2-3 बार नहीं लिखोगे, इट विल नॉट इम्प्रूव. सो प्लीज डोंट ओनली लिसन बट राइट इट. दैट इज हाउ यू विल इम्प्रूव. जैसे टुडे इट हैज बीन फाउंड दैट, तभी आपको समझ आएगा. ही रिप्लाइड दैट, यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हो, ही हैज रिप्लाइड, ये ज्यादा अच्छा लगे. ही हैज रिप्लाइड, अगर ये सारा कुछ प्रेजेंट में डालना है. ही हैज रिप्लाइड दैट ही हैज अ वॉकिंग स्टिक बट इट इज यूजलेस. अगर आपको जरा से भी कंफ्यूजन है, लास्ट वाली विजिट को सब कुछ प्रेजेंट कर दो और इससे पहले वाली सारी विजिट पास्ट कर दो. ये सारा पास्ट है, ये सारा प्रेजेंट है. सो मेक इट वेरी सिंपल. प्रेजेंट का मतलब हैज हैव थर्ड फॉर्म, हैज थर्ड फॉर्म. और पास्ट का मतलब सीधा सेकंड फॉर्म. जीपी ने एडवाइस किया सेकंड फॉर्म, वो गिर गया सेकंड फॉर्म.
उसकी नहीं होगी, ये तो चलो पैसिव वॉइस है, ये भी पैसिव, चलो ही रिपोर्टेड दैट, ये सेकंड फॉर्म। जब प्रेजेंट में होता है तो वही बन जाता है कि प्रेजेंट में ही हैज रिक्वेस्ट, शी हैज रिक्वेस्टेड अस टू अरेंज अ visit, hence you are requested. So that is the difference. एक बार लिखने से नहीं, आप जब इसको 3-4 बार लिखोगे, अगर आपकी ग्रामर वीक है तो 3-4 बार आपको लगातार लिखना पड़ेगा, कम से कम 1-2 हफ्ता। अगर आपकी ग्रामर वीक है तो 3-4 बार एक लेटर को 1-2 हफ्ता लिखो, यू विल फाइंड लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन योर सेल्फ। सो दिस इज डॉक्टर भूपेश फ्रॉम डॉक्टर BKM Institutes. Our contact number is 76967 34256. Please, for any doubt, you can leave a comment in the comment box for the YouTube followers, and for our students, I'm just going to start with you the doubt session. Thank you.